Welcome to Forward Public School e-learning class 10 subject maths unit 6 basic statistics exercise 6.4 page 157 part 1. I'm your teacher Noreen Amin. Page 153 topic measures of dispersion. Dispersion is the scatteredness of values from its centered value average. Types of measures of dispersion are range, standard deviation denoted by ST, variance. First type of measure of dispersion is range. Definition: the range is the difference between the smallest observation and the largest observation. रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. आपने रेंज ऑलरेडी 6.1 में पढ़ लिया कि वो क्या है कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करते तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है. पेज 155 टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन ST. It is the positive square root of average of square deviations measured from AM, means arithmetic mean. Formula of standard deviation for ungrouped data is standard deviation equals to square root of summation x minus x bar whole square divided by n, and standard deviation equals to square root summation f into x minus x bar whole square divided by summation f for frequency distribution or for group data. Variance. Variance is the square of standard deviation. Variance is usually denoted by symbol S. Mathematically, it is expressed as S square equals to summation x minus x bar whole square divided by n. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं summation x square divided by n minus summation x by n whole square for group data, and for discrete or continuous data means for frequency जिसमें आ जाती है. So s square equals to summation f into x minus x bar whole square divided by summation f, or summation f into x square divided by summation f minus summation f x divided by summation f whole square for discrete and continuous data. Exercise 6.4 page 157 topics measures of dispersion. Dispersion is the scatteredness of values from its central value average. Types of dispersion are range, standard deviation, variance. To calculate dispersion for grouped and ungrouped data and group data. Range equals to smallest value minus largest value minus smallest value. For group data, range equals to fxm minus fx naught. Related questions are example 30, 31, 33. Question number 1. Related questions are example 32. Exercise question number 3. Standard deviation ST for ungrouped data. ST equals to square root summation x minus x bar whole square divided by n. And for group data, ST equals to square root summation f into x minus x bar whole square divided by summation f. Or by direct method, we can use also this formula for standard deviation. Standard deviation equals to square root summation x square by n minus x summation x divided by n whole square, or standard deviation equals to square root of variance. Standard deviation for group data, square root summation f into x square divided by summation f minus summation fx divided by summation f whole square. Variance for group data or ungrouped data, variance is the square of standard deviation, that is variance equals to standard deviation whole square. S square equals to summation x minus x bar whole square divided by n, or by direct method, s square equals to summation x square divided by n minus summation x by n whole square, or variance equals to standard deviation whole square. Related questions are part 1 and 3. Example 34, exercise question 2, 4 and 5. Now variance for group data, s square equals to summation f into x minus x bar whole square divided by summation f, or s square equals to summation f x square divided by summation f minus summation fx divided by summation f whole square. Related questions are 2 in part 3. Example 35, question number, exercise questions are 3 and 6. Question number 1, find the range for the following items. We have a data given है, ungrouped data given है, इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे. The data has the following items. हमारे पास ये आइटम है. अब इन आइटम्स में
इस डेटा में हम चेक करें कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, विच इज़ 23 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 11. सो द रेंज फॉर्मूला इज रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो 23 माइनस 11, सो क्या आ जाएगा 12. सो रेंज इज 12 एंड दिस इज द आंसर. Question number 2. A bank manager was interested in the waiting time of customers. For this, he carried out a survey. A random sample of 12 customers was selected and yielded the following data. Now we have the data. Calculate क्या करना है, average, median and standard deviation. इस डेटा से हमने ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है. सोल्यूशन, राइटिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर्स. एंड असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट इस डेटा को लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखा. अब क्या फाइंड करेंगे, इससे फर्स्ट हम एवरेज फाइंड करेंगे. और एवरेज किसे कहते हैं, मीन्स हमारे पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. अब एक्स हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वाली हमारे पास क्या है, एक्स आई हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है. और उसका हम क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है. मीन्स एक्स की इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो क्या आ जाएगा 92.65. और आई फ्रॉम 1 टू n मीन्स हमारे पास सीरियल नंबर कितने आइटम से 12 है. सो n क्या हो जाएगा 12. सो हेयर n इक्वल्स टू 12 समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 92.65 यूजिंग द फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n. एक्स आई की जगह हम क्या लिख देंगे, 92.65 डिवाइडेड बाय 12. अब 92.65 को डिवाइड करेंगे किस पर, 12 पर. सो आंसर क्या आ जाएगा 7.72. एंड एवरेज हमारे पास मीन्स हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 7.72. सेकंड फाइंड करेंगे मीडियन. मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. इन एन अरेंज डेटा असेंडिंग ऑर्डर वेयर एन हमारे पास क्या है 12 है, इवन नंबर है. और मीडियन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, इवन अगर हमारे पास एन आ जाए सो मीडियन इक्वल्स टू 1/2 n/2 आइटम प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 आइटम. साइज ऑफ n क्या है 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. n 12 + 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. एंड 12 + 2 इज़ 14 डिवाइड बाई 2 इज़ 7. सो साइज ऑफ सिक्स आइटम एंड साइज ऑफ 7th आइटम. मीडियन हमारे पास क्या आया, साइज ऑफ 6th आइटम एंड साइज ऑफ 7th आइटम. सो 6 आइटम हमारे पास क्या है 8.01 और 7 आइटम क्या है 8.02. तो 6 आइटम की जगह हम क्या लिख देंगे 8.01 प्लस 8.02. 7 आइटम की जगह दोनों को प्लस करेंगे तो 16.03 आ जाएगा. और डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर. तो मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा 8.018. लास्ट हम क्या फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या आता है, x माइनस एक्स बार आता है. ठीक है, फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे एक्स बार, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 7.72 है. अब हम क्या करेंगे एक्स की तमाम वैल्यूज से हम क्या माइनस करेंगे, एक्स 7.772 माइनस करेंगे. सो फर्स्ट 5.47 से जब हम 7.72 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2.25 आ जाएगा. इसी तरह 5.64 से जब हम माइनस करेंगे 7.72 तो क्या आ जाएगा -2.08. और इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ को एक्स की तमाम वैल्यूज़ को एक्स बार से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा. नाउ अब हम क्या करेंगे x माइनस एक्स बार होल क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर किस तरह लेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है -2.25 इन होल स्क्वायर. सो क्या आ जाएगा ये 5.0625. इसी तरह हम सेकंड के लिए भी फाइंड करेंगे -2.08 होल स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा 4.3264. इसी तरह हम रिमेनिंग नंबर्स के भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे. तो हमारे पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ जाएगा. अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. सो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 35.3315 आया. नाउ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 35.3315 और n हमारे पास क्या है 12 है. सो यूजिंग फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. वैल्यूज पुट करेंगे. अब क्या करेंगे 35.3315 को डिवाइड करेंगे किस पर 12 पर. सो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2.944 आ जाएगा. अब हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है. तो स्क्वायर रूट 2.944 से इससे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.716. 1.7158 है, 8 है. तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6. सो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.718 आ जाएगा. एंड दिस इज़ द आंसर.
Question number 5 of exercise 6.4. Following are the marks out of 75 of 8 students in 2 subjects. Students are A, B, C, D, E, F, G, H. These are the students. Marks in maths, ये marks दिए हैं students ने, और marks in physics. Compare the standard deviation of the marks and tell that in which subject students are more consistent. अब इस डेटा के लिए हमारे पास फिजिक्स के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स गिवन हैं. सो मार्क्स इन मैथ्स के लिए हम सेपरेटली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और फिजिक्स के लिए हम सेपरेट फाइंड करेंगे और फिर इस पर चेक करेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में मोर कंसिस्टेंट है. सोल्यूशन, हम इस तरह टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. स्टूडेंट्स हमारे पास A to H है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा. अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए हम सेपरेट फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज क्या है, अनग्रुप डेटा है. सो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो एक्स एम, ये एम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्क्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट. एक्स पी मीन्स फिजिक्स के मार्क्स. सो एक्स एम हमारे पास मैथ्स के तमाम मार्क्स हम इंटर कर देंगे जिन स्टूडेंट्स ने लिए हैं. अब इसका हम फाइंड क्या करेंगे, समेशन, मीन्स हम एक्स एम की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 437 आ जाएगा. अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे, हमें एक्स बार चाहिए, मीन्स मीन चाहिए. सो मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर मैथ्स. अब मीन फाइंड करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स एम डिवाइडेड बाय एन. समेशन एक्स एम हमारे पास क्या आया है 437 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास क्या है 8. जब हम इसको 437 को डिवाइड करेंगे 8 पर तो आंसर क्या आएगा 54.625. मीन्स हमारे पास एक्स बार मीन क्या गया है 64.625. अब हम क्या करेंगे, मीन की ये वैल्यू हम माइनस करेंगे एक्स की तमाम वैल्यूज से. सो फर्स्ट हमारे पास एक्स एम क्या है 54. सो 54 माइनस हो जाएगा किससे, हमारे पास जो मीन आया है वो क्या है 54.625. सो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 0.625. इसी तरह 63 से हम माइनस करेंगे 54.625 एंड द आंसर इज 8.375. और इसी तरह हम रिमेनिंग एक्स एम माइनस एक्स बार फाइंड कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी. नाउ अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है. सो फर्स्ट क्या करेंगे, माइनस 0.625 का हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.3906 ये हो जाएगा. अब हम सेकंड का स्क्वायर फाइंड करेंगे. सो 8.375 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70.1406. और इसी तरह हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ का भी स्क्वायर ले लेंगे. होल स्क्वायर लेने के बाद हम इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इनका समेशन ले लेंगे. प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 793.8748 आ जाएगा आंसर. सो मैथमेटिक्स के लिए हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट समेशन एक्स एम माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. सो स्क्वायर रूट समेशन एक्स एम माइनस एक्स बार हमारे होल स्क्वायर का आंसर क्या है, इस जगह हम ये पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय एन. एन हमारे पास क्या है 8 है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो 793.8748 को जब डिवाइड करेंगे 8 पर सो आंसर क्या आएगा 99.2343. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे. सो 99.2343 का जब स्क्वायर रूट लेंगे सो आंसर क्या आएगा हमारे पास 9.9616. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 9.96 हो जाएगा. अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फिजिक्स. सारे स्टेप्स उसी तरह है जिस तरह हमने मैथमेटिक्स के लिए किए हैं. फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार. एक्स पी मीन्स फिजिक्स के मार्क्स को हम फर्स्ट क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 438 आ जाएगा. और फॉर्मूला क्या है मीन का, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स पी डिवाइडेड बाय एन. समेशन एक्स पी क्या है 438 डिवाइड हो जाएगा किस पर 8 पर. सो आंसर क्या आ जाएगा 54.75. अब हम एक्स बार को माइनस करेंगे एक्स पी के तमाम वैल्यूज से. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है वैल्यू 52. सो 52 से हम माइनस करेंगे क्या 54.75. सो आंसर क्या आ जाएगा -2.75. इसी तरह सेकंड वैल्यू क्या है 55 से माइनस करेंगे 54.75. सो द आंसर इज 0.25. अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का हम होल स्क्वायर लेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है -2.75 का जब हम उसको होल स्क्वायर लेंगे सो आंसर क्या आएगा
7.5625। इसी तरह अगर हम सेकंड का फाइंड करें स्क्वायर तो 0.25 का होल स्क्वायर इज़ 0.0625। उसी तरह हम रिमेनिंग वैल्यूज़ का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 79.55। 79.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला में इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एक्स पी माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समेशन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 79.5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9.9375। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो 9.9375, सो आंसर क्या आ जाएगा 3.15। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फिजिक्स मार्क्स क्या है 3.15। अब अगर हम कंपेयर करें फिजिक्स के मार्क ये हमारे पास है 3.15 और मैथ्स का 9.96। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिजिक्स हमारे पास लेस आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मैथ्स का, मीन्स फिजिक्स के हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3.15 और मैथ्स का क्या है 9.96, जो ग्रेटर है फिजिक्स के मार्क्स से। देयरफॉर these students are more consistent in physics than in maths। फिजिक्स में हमारे पास क्या है more consistent से as compared to maths, and this is the answer। Question number 6 of exercise 6.4, the following is the distribution for the number of defective bulbs in 30 curtains packs। Find the variance and standard deviation for the defective bulbs। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है, ये है। नंबर ऑफ पैक्स मीन्स फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये है। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। हमारे पास ग्रुप्स गिवन है फ्रॉम 0 to 2, 2 to 4। अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर अपर और इस सेकंड ग्रुप का लोअर हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो इसमें क्लास बाउंड्री फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ये क्या हो, ये दोनों सेम आ जाए। इस तरह हमारे पास 4 4 भी सेम है, 6 6 और 8 8, तो इसमें हमारे पास क्लास बाउंड्री फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है। सो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम समेशन एफ करेंगे। एफ की तमाम वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, मीन्स मीन चाहिए। जहाँ पर मीन हम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1, 2 + 4 विच इज़ 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और इस तरह हम रिमेनिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, एफ और एक्स की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 टाइम इज़ 1, 3 3 टाइम इज़ 9, 15 5 टाइम इज 75, और इस तरह रिमेनिंग फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, हम समेशन एफ एक्स फाइंड करेंगे, मीन्स एफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो क्या आ जाएगा 173 आ जाएगा। अब फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर। हम ये क्यों फाइंड, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में ये तमाम चीज़ें चाहिए, तो इससे हम 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर मीन्स हम एक्स की तमाम वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 स्क्वायर करेंगे सो मीन्स क्या आएगा, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 टाइम इज़ 9, 5 स्क्वायर इज़ 25, और इस तरह रिमेनिंग। अब एफ की वैल्यूज़ को और एक्स स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 टाइम इज़ 1, 3 9 टाइम इज़ 27, 15 25 टाइम इज़ 375, इस तरह रिमेनिंग फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1055 हो जाएगा। नाउ वेरिएंस बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 1055 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है हमारे पास 31, माइनस हो जाएगा समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या आया है 173 डिवाइडेड बाय 31 हो जाएगा होल स्क्वायर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1055 को डिवाइड करेंगे 31 पर, सो द आंसर इज 34.30032। इस तरह हम इसको भी डिवाइड करेंगे 173 डिवाइड 31, सो द आंसर इज 5.58। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 5.58 का होल स्क्वायर लेंगे। सो ये क्या आ जाएगा 31.136 आ जाएगा, और फिर हम इसको माइनस करेंगे इस वैल्यू से, सो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 34.032 को माइनस करेंगे 34.032 को माइनस करेंगे 31.136 से, सो आंसर क्या आ जाएगा, वेरिएंस हमारे पास 2.896 आ जाएगा। नाउ अब हम फाइंड क्या करेंगे,
स्टैंडर्ड डेविएशन एसटी, और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। सो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मीन्स वेरिएंस का आंसर हमारे पास क्या है 2.896। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2.896। सो आंसर क्या आ जाएगा 1.70, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1.70, एंड दिस इज द आंसर। Students, I have done question number 1, 2, 5 and 6. Remaining questions 3 and 4 are your homework. This is the end of exercise 6.4 part 1. In next video, inshallah, we will start review exercise of unit 6. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.